एकांत सूत्र। जेन विना लोगस्सवि व्यवहारो संवहान निर्वहयि तस्य भुवनिक गुरुणो नमो अनेगन्तवायस्य। गुणानमासो दौवम् एकदौवस्य गुणा लक्षणं पज्यवाणं तु उभवो अस्य भवे। दौवं पज्यवियूयं दौवविवुत्ताय पज्यवाणर्थी पायर्थी भंगा हन्ति दवीयलक्षणम् एयम्। न भवो भंगविहीनो भंगो वा नर्थी संभवविहीनो उपादो व्यभंगो न विना दोवेन अत्तेन। उपादट्ठिरि भंगा विज्जन्ते पज्येषु पज्याया दौवं हि सन्ति नियतं तम्मा दौवं हवति सौवम्। समवेदं खलु दौवं संभवठिदिना ससन्निधट्ठेहिम् एकम्मिचेव समये तम्मा दौवं कुतत्तिद्ययम्। पाडुभवदिय अन्नो पज्यावो पज्यावो वयदि अन्नो दौवस्य तम्पि दौवं नेव पणट्ठं नेव उत्पन्नम्। पुरुषं मे पुरुषशब्दो जम्मायि मरणकाल पर्यन्तो तस्य बालाय्या पज्यवजोया बहुवियप्पा। तम्मावत्थूणं चिय जो सरिसो पज्यवो ससामन्नम् जो विसरिसो विशेषो यमो नत्थन्तरं तत्तो। सामन्नः विशेषे दौवे नाणं हवेयविरोहो साहयितं सम्मत्तं नहु पुणतं तस्य विवरीयम्। प्युपुत्तनत्तु भव्वय भावूणम् एकपुरुषसम्बन्धो नयसो एकस्य पिय तिशेषयाणं पिया होयि। सवियप्पनिवियप्पं य पुरुषं जो भणेज्य अवियप्पं सवियप्पमेव वा निश्चयेन न स निश्चयो समये। अन्नोन्नानुगयाणम् इमं वतं वत्ति भियणमज्जुत्तं जदुद्धपाणियाणं जावन्तविशेषपज्याया। संकेजया संकितभावभिक्षु विभज्यवायं च व्यागरेज्या भाषादुगं
धम्मसमुत्थितेहिं व्याघ्रज्यासनयासु सम्मे Samana Suttam, Sutra 37. The percepts on non-absolutism, Anekanta Sutra, Gatha 660. Without whom even the worldly affairs cannot be carried out, I bow to the Anekantavada, that is the non-absolutism, the only perceptor of the world. Gatha 661. The substance is the abode of attributes, and the same are inherited by the substance. The distinctive characteristics of mode is that it depends on both. Gatha 662. There is no substance without the modes, nor are the modes without substance. The characteristics of substance are origination, permanence, and destruction. Gatha 663. There is no origination without destruction, no destruction without origination, while neither origination nor destruction is possible without a permanent substance. Gatha 664. The origination, permanence, and destruction belong to the modes and not to the substance. But since modes are definitely of the form of a substance, everything whatsoever is the form of a substance. Gatha 665. Since at one and the same moment the substance is subject to three states, viz. Origination, permanence, and destruction, these three states verily constitute a substance. Gatha 666. The mode of a substance which emerges is one, and that which vanishes is other than it, while the substance neither emerges nor vanishes. Gatha 667. The individual remains the same person from his birth till the time of death, though he assumes the various states of childhood, etc.
Gatha 668. All the modes of the things which are common to all of them are universal, while those which are not are particular, but both belongs to the same. Gatha 669. The cognition of a substance are universal and particular and are non-contracted. This is the right cognition, whereas the contrary to it is not. Gatha 670. One and the same person assumes the relationship of a father, son, grandson, nephew, and brother, but he is the father of one who is and not of the rest. So is the case with all the things. Gatha 671. A person is certainly possessed of alternative relationships and also assumes single relationship, but one exclusively ascribes to the person either the former or the latter relationship is certainly not well versed in the scripture. Gatha 672. The particular qualities of a substance are mixed together just like milk and water. So it is not justifiable to exclusively distinguish them as this or that quality. Gatha 673. A monk who is doubtful about the meaning of a verse should adopt without any pride the relative point of view in his interpretation. A wise monk, while dealing with other monks, follow the right path in their practice of religion, should preach with equanimity in a truthful and unequivocal language. Samana Suttam, Sutra 37, Anekanta Sutra, Gatha 660. जिसके बिना लोक का व्यवहार बिल्कुल नहीं चल सकता, विश्व के उस एकमेव गुरु अनेकांतवाद को प्रणाम करता हूं. गाथा 661. द्रव्य गुणों का आश्रय या आधार है. जो एक द्रव्य के आश्रय रहते हैं वे गुण है. पर्यायों का लक्षण द्रव्य या गुण दोनों के आश्रित रहना है.
गाथा 662। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं। उत्पाद स्थिति यानी कि ध्रुवता और व्यय यानी कि नाश द्रव्य का लक्षण है। अर्थात द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें प्रति समय उत्पाद आदि तीनों घटित होते रहते हैं। गाथा 663। उत्पाद व्यय के बिना नहीं होता और व्यय उत्पाद के बिना नहीं होता। इसी प्रकार उत्पाद और व्यय दोनों त्रिकाल स्थायी द्रव्य अर्थ यानी के आधार के बिना नहीं होते। गाथा 664। उत्पाद व्यय और द्रव्य यानी के उत्पत्ति विनाश और स्थिति ये तीनों द्रव्य में नहीं होते, अपितु द्रव्य की नित्य परिवर्तनशील पर्यायों में होते हैं। परंतु पर्यायों का समूह द्रव्य है, अतः सब द्रव्य ही है। गाथा 665। द्रव्य एक ही समय में उत्पाद व्यय और द्रव्य नामक अर्थों के साथ समवेत एकमेक है, इसलिए ये तीनों वास्तव में द्रव्य है। गाथा 666। द्रव्य की अन्य उत्तरवर्ती पर्याय उत्पन्न प्रकट होती है और अन्य यानी के पूर्ववर्ती पर्याय नष्ट यानी के अदृश्य हो जाती है। फिर भी द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है, द्रव्य के रूप में सदा ध्रुव नित्य रहता है। गाथा 667। पुरुष में पुरुष शब्द का व्यवहार जन्म से लेकर मरण तक होता है, परंतु इसी बीच बचपन बुढ़ापा आदि अनेक पर्याय उत्पन्न होकर नष्ट होती जाती है। गाथा 668। अतः वस्तुओं की जो सदृश पर्याय है, दीर्घ काल तक बनी रहने वाली समान पर्याय है, वही सामान्य है और उनकी जो विसदृश पर्याय है वह विशेष है। ये दोनों सामान्य तथा विशेष पर्याय उस वस्तु से अभिन्न कथनचित मानी गई है। गाथा 669। सामान्य तथा विशेष इन दोनों धर्मों से युक्त द्रव्य में होने वाला विरोध रहित ज्ञान ही सम्यक का साधक होता है। उसमें विपरीत अर्थात विरोध युक्त ज्ञान साधक नहीं होता। गाथा 670। एक ही पुरुष में पिता पुत्र पौत्र भानेज भाई आदि अनेक संबंध होते हैं। एक ही समय में वह अपने पिता का पुत्र और अपने पुत्र का पिता होता है, अतः एक का पिता होने से वह सब का पिता नहीं होता। यही स्थिति सब वस्तुओं की है। गाथा 671। निर्विकल्प तथा सविकल्प उभय रूप पुरुष को जो केवल निर्विकल्प
अथवा सविकल्प एक ही कहता है, उसकी मति निश्चय ही शास्त्र में स्थिर नहीं है। गाथा 672। दूध और पानी की तरह अनेक विरोधी धर्मों द्वारा परस्पर घुले मिले पदार्थ में यह धर्म और वह धर्म का विभाग करना उचित नहीं है। जितनी विशेष पर्याय हो उतनी ही अविभाग समझना चाहिए। गाथा 673। सूत्र और अर्थ के विशेष से शंका रहित साधु भी गर्व रहित होकर स्याद्वादमय वचन का व्यवहार करे। धर्माचरण में प्रवृत्त साधुओं के साथ विचरण करते हुए सत्य भाषा तथा अनुभव, जो न सत्य हो और न असत्य हो, भाषा का व्यवहार करे। धनी या निर्धन का भेद न करके समभाव पूर्वक धर्म कथा कहे। समण सुत्तम। सूत्र 37। अनेकांत सूत्र। संस्कृत रेंडरिंग। गाथा 660। ये न विना लोकस्य अपि व्यवहारः सर्वथा न निर्वहति, तस्मै भुवनैक गुरवे नमः अनेकांतवादाय। गाथा 661। गुणानाम् आश्रयो द्रव्यम् एक द्रव्याश्रिता गुणः, लक्षणं पर्ययवाणं तु उपयोराश्रिता भवन्ति। गाथा 662। द्रव्यं पर्यववियुक्तम् द्रव्यवियुक्ताश्च पर्यवाहन सन्ति, उत्पादस्थितिभङ्गः हन्त द्रव्यलक्षणमेतत्। गाथा 663। न भवो भंग विहीनो भंगो वा नास्ति संभव विहीनः, उत्पादोऽपि च भंगो न विना द्रव्यो नार्थेन। गाथा 664। उत्पाद स्थिति भंगा विद्यन्ते पर्यायेषु पर्यायः, द्रव्यं हि सन्ति नियन्तं तस्माद् द्रव्यं भवति सर्वम्। गाथा 665। समवेत खलु द्रव्यं
संभव स्थिति नाश संनीतार्थैः एकस्मिन् चैव समये तस्माद् द्रव्यं खलु तत्त्रितयम्। गाथा 6:6-6 प्रादुर्भवति चान्यः पर्यायः पर्यायो व्यवते अन्यः द्रव्यस्य तदपि द्रव्यं नैव प्रनष्टं नैव उत्पन्नम्। गाथा 6:6-7 पुरुषे पुरुष शब्दो जन्मादि मरणकाल पर्यन्तः तस्य तु बालादिकः पर्यायोग्य बहुविकल्पः। गाथा 6:6-8 तस्मात् वस्तुनामेव यः सदृशः पर्यवहासः सामान्यं यो विसदृशो विशेषः स मतोऽनर्थान्तरं ततः। गाथा 6:6-9 सामान्यमय विशेषः द्रव्ये ज्ञानं भक्त्यविरोधः साधयति तत् संभवक्तं नहि पुनस्ततस्य विपरीतम्। गाथा 6:7-0 पितृपुत्रनातृभव्यक भ्रातॄणाम् एक पुरुष संबंधः न च स एकस्य पिता इति शेषकाणां पिता भवति। गाथा 6:7-1 सविकल्प निर्विकल्पम् इति पुरुषं यो भनेत् अविकल्पम् सविकल्पमेव वा निश्चयेन स निश्चितः समये। गाथा 6:7-2 अन्योन्यानुगतयो इदं वा तदं वा इति विजनमययुक्तं यथा दुग्धपानीययोः यावन्तः विशेषपर्यायः। गाथा 6:7-3 शंकित चाशंकित भावो भिक्षुः विभज्यवादं च व्याघ्रुनिवान् भाषाद्विकं च सम्यक् समुस्थितैः व्यागुनीयात् समतया सुप्रज्ञः।